Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah آمین آمین مکرمی سامعین، یہ جو فارغ ہونے والے طلبہ عزیز ہیں وہ اپنے دل کی ترجمانی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں ان تمام کی طرف سے ایک شعر کہتا ہوں کہ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، لیکن وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا، اور تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ مکرمی سامعین، اب ہم اس محفل کے صدر اجلاس اور آج کے مہمان خصوصی شیخ الحدیث حضرت مولانا حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ سنا ہے رات اس کو چاند تکتا رہتا ہے، سنا ہے رات اس کو چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہاروں پہ یہ الزام در کے دیکھتے ہیں، رکے تو گردش اس کا طواف کرتی ہے، چلے تو زمانے اسے ٹہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ عقیدت اور احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے صدر محترم سے گزارش ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم کنار فرمائے، مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بها أقواما ويزع بها آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حضرت قاری صاحب نے یعنی ہمارے قاری احسان محسن صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے سامنے اللہ کے حمد بھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق بھی اشعار سنائے، گویا کہ وہ ترجمہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ قاری صاحب کو عام طور پر لوگ صرف ایک شاعر اسلام ہی کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب ایک زندہ دل رکھتے ہیں۔ آپ اس شخصیت کے صحبت یافتہ ہے، اس شخصیت کے مجاز ہیں، اس شخصیت کے خلیفہ ہیں جو خاموش مجاز، جن کی طبیعت میں خاموشی تھی، اور جو درس دیتے تھے تو اکابر کے اقوال سے ان کی ترمذی شریف مزین ہوا کرتی تھی۔ وہ میرے بھی استاذ ہیں، وہ میرے بھی شیخ ہیں، وہ میرے بھی بڑے ہیں، وہ میرے بھی محب و محبوب ہیں، مجھ سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ناظم مظاہر علوم سہارنپور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب کے والد صاحب کے رفیق درس تھے،
ساتھی تھے مذاہب علوم کے اندر۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس عاجز سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ کیا بتاؤں ان کے تذکرے میں کیا کروں۔ ہماری جماعت 620 کی تھی، بلکہ 622 کی جماعت تھی مظاہر میں۔ جب وہاں سے ہم فارغ ہو کر کے چلے ہیں تو حضرت نے 622 طلبہ کے اندر صرف اس عاجز کو اپنے ہاتھوں سے اجازت حدیث لکھ کر کے خاص طور پر عنایت فرمائی اور فرمایا حنیف تم پر مجھے اعتماد ہے۔ حضرت کو انتہائی محبت تھی۔ میں اپنا طالب علمانہ ایک واقعہ سناؤں۔ جمعرات تھی، دیوبند میں مشاعرہ تھا، ہم رات میں مشاعرے میں گئے، صبح تاخیر ہو گئی، فجر کی نماز جماعت سے ہم نے نہیں پڑھی، بلا جماعت پڑھی۔ سپروائزر آ گئے، دفتر میں انہوں نے شکایت کر دی، ہمارے ہفتے بھر کا کھانا بند ہو گیا۔ سنیچر تو ہم نے کیسے ہی گزار لیا۔ اتوار کو میں حضرت مفتی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت ہمارا کھانا بند ہو گیا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ہم نے کہا کہ حضرت مشاعرے میں گئے تھے، رات دیر ہو گئی، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پائے۔ کہاں پڑھی تو تھی نا؟ میں نے کہا جی حضرت فجر کی نماز وقت میں پڑھی، جماعت سے نہیں پڑھی۔ حضرت نے فرمایا طلبہ ایسا نہیں کیا کرتے، یہ کہہ کر اس عاجز کا کھانا جاری کر دیا۔ بہت شفقت و محبت فرمائی۔ جب حالات پیش آئے، مسائل پیش آئے، تو ان حالات میں حضرت مفتی صاحب کو میں قریباً 6 مرتبہ اپنے مکان لے آیا اور علاقے میں حضرت کا خوب میں نے تعارف کروایا اور گھر گھر لے کر کے چلا۔ مجاز تھانویت لیے ہوئے تھے۔ ایک بستی میں جب ہم پہنچے، وہاں ایک صاحب نے حضرت کو کپڑا ہدیے میں پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، اور جس کو ہم نہیں پہچانتے اس کا ہدیہ نہیں لیتے۔ آپ بار بار ہمارے پاس آیا کریں، تب جا کر ہم آپ کا ہدیہ لیں گے۔ ہم متعارف کا لیتے ہیں، غیر متعارف کا نہیں لیتے۔ تو وہ صاحب مجھے گجراتی میں کہنے لگے کہ حضرت سے آپ کہو کہ یہ حلال کا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ تو حضرت پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال حلال کا ہے، میں کھیرت ہوں، میں کھیتی کرتا ہوں، اور میں اپنے حلال پیسوں سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل میں متعارف اور غیر متعارف کا ہے۔ اور حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ کا اصول یہ تھا کہ اپنے متعارف سے لیتے تھے، اپنے غیر متعارف سے نہیں لیتے تھے۔ بہرحال عظیم المرتبہ شخصیت حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کے بھی وہ استاذ ہوتے تھے۔ ترمذی شریف، جلالین شریف حضرت شیخ یونس صاحب نے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب ہی سے پڑھی تھی۔ جب وہ واقعہ پیش آیا اور مظاہر میں جو ہے علیحدگی ہو گئی اور 2 مدرسے بن گئے، اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت شیخ یونس صاحب کی زبان ہم نے سنا کہ جب میں دار قدیم سے دار جدید میں منتقل ہوا تو حضرت مفتی صاحب نے میری ساری کتابیں واپس کر دی، حتیٰ کہ میری دوا کھانے کی چھوٹی سی چمچ تھی جس سے میں دوا کھاتا تھا، اس کو بھی تلاش کر کے حضرت مفتی صاحب نے مجھے پہنچا دی اور فرمایا مولی یونس کو کہہ دینا قیامت میں مظفر کی گردن نہ پکڑنا۔ یہ حضرت شیخ یونس صاحب نے ہمیں سنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ نے ایک جملہ فرمایا تھا، بہت پیارا جملہ۔ حضرت نے فرمایا یونس کی آنکھ لے کر دیکھو کہ مفتی مظفر میں کیا کمالات ہیں۔ بہت سارے حالات و مسائل ہیں، مجھے اس وقت ان حالات و مسائل کو ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ یہ اشعار پڑھنے والا ایک صاحب دل آدمی ہے۔
اپنے دل میں ایک درد رکھتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کے ذکر میں ایک قرن تھا، ایک وجد تھا، ایک کیفیت تھی، ایک مستی تھی، ایک لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی آواز تھی، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و جمال پر جو اشعار پڑھ رہے تھے وہ دلوں میں نچھاور کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک عظیم المرتبت بزرگ کے جو ہے تربیت یافتہ ہے، ان کے مجاز ہے، ان کے خلیفہ ہے۔ حق تعالی آپ کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے سائے عاطفت کو امت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ بہرحال وہ ہم کو کہہ رہے تھے کہ سعادت ہوئی ہماری کہ اس مجلس میں یہاں تو بیٹھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں قاری صاحب ہماری سعادت ہے کہ آپ دور و دراز سے یہاں تک تشریف لائے۔ ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری اس محفل و مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ حق تعالی آپ کی آمد کو اور آپ کے درد دل کی کیفیات کو ہمارے دلوں کے اندر بھی جاگزی فرما دے، اور ہم بھی اسی طرح رونے والے اور دمکنے اور چمکنے والا دل لے کر کے بیٹھنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو رونے والا دل عطا فرمائے، رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا ختم ہو گیا، ہمارا رونا ختم ہو گیا۔ دنیا کی جگمگاہٹ نے اور دنیا کی تزیین نے اور دنیا کی زینت نے اور دنیا کی ہوس نے اور مال و دولت کی ہوس نے ہمارے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ کہتا ہے میرے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو میرے خوف سے پہاڑ سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، میرے بعض پتھر وہ ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ لیکن اے افسوس اے انسان، تجھ پر تو اتنا گیا گزرا ہے کہ تو پتھر سے زیادہ سخت بنا ہوا ہے۔ تیرے سامنے جہنم کے تذکرے بھی اثر نہیں کرتے، تیرے سامنے جنت کے تذکرے بھی اثر نہیں کرتے، تیرے سامنے نبی کا تذکرہ بھی اثر نہیں کرتا، تیرے سامنے آقا کا جلوہ بھی اثر نہیں کرتا، اور تیرے سامنے اللہ کی حمد بھی اثر نہیں کرتی۔ ہمارے قلوب مرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نصیحت ہو رہی ہے، لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے قلوب مر چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ باتیں نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ کے اوپر تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہاڑ کیسے ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ تو مٹی کا پہاڑ ہے، یہ پتھروں کا پہاڑ ہے، اس کے ٹکڑے ہو جانا اور قرآن کے وزن کو برداشت نہ کرنا یہ تو بہت آسان ہے۔ یہ قرآن جب اترا ہے مکے کے اندر اور یہ قرآن جب پہنچا ہے صحابہ کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو کفر کے پہاڑ تھے، جن کو کفر کے اوپر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا، جو کفر کے ایسے مضبوط پہاڑ تھے کہ ہمالیہ کا ہٹانا آسان، لیکن کفر کے پہاڑ عمر کو ہٹانا مشکل تھا، خالد بن ولید کو ہٹانا مشکل تھا، اکرمہ بن ابی جہل کو ہٹانا مشکل تھا۔ یہ وہ بڑے بڑے کفر کے پہاڑ تھے، لیکن عجیب و غریب یہ قرآن جب پہنچا ہے ان کے پاس تو حضرت عمر کی جب ران پر اور حضرت عمر کے سینے کے قریب اس قرآن کے کچھ اوراق جب رکھے گئے اور نظر پڑی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے فرمایا مجھے لے چلو محمد کی خدمت میں، اس لیے کہ میں محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ عمر پہلے قرآن کی خدمت میں آیا، پھر محمد کی خدمت میں گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن جب کفر کے پہاڑ عمر کے سینے پر آیا ہے تو عمر کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔
खालिद बिन वलीद के ऊपर आया तो खालिद बिन वलीद भी एक टुकड़ा होकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे पहुंच गया। वो इक्रिमा बिन अबी जहल, जिसका बाप भी नबी का दुश्मन, जिसका बेटा इक्रिमा भी नबी का दुश्मन, लेकिन जब ये कुरान मतीन उनके पास जा रहा है तो उनको भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले आता है। मालूम होता है कि जब ये कुरान इन कुफ्र के पहाड़ों के ऊपर आया तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस पहाड़ का जो मिट्टी और पत्थर के हैं, अगर इस पर कुरान को उतार दिया जाता तो इसके टुकड़े हो जाना तो बहुत आसान था। एक सवाल यह होता है कि फिर आखिर हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो हमारे दिलों के टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? हजरत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जवाब देते हैं। शाह साहब फरमाते हैं कि याद रखो, ये कल्बे मोहम्मदी से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक से फिल्टर होकर के आया हुआ है। अगर सीधा हम पर उतर जाता तो हमारे दिल भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसा अजीमुल मर्तबत कुरान हक़ तआला जल्ल शानुहु ने हमें अता फरमाया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने रोने वाले बने, गिरगिराने वाले बने, आंसू बहाने वाले बने, अल्लाह के सामने अपने आप को डाल देने वाले बने। मैंने अभी एक जगह कहा कि हमारे वहाँ हिज़्बुल आज़म है, मुनाजात मकबूल है, इन किताबों को पढ़ना चाहिए। इन किताबों में जो दुआएं हैं वो दुआ है जो अल्लाह ने बताई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। मेरी और आपकी दुआ मांगने के अंदर कोई कमी रह जा सकती है, कोई कमी रह सकती है, कुछ मांगो और कुछ न मांगो। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब दुआएं फरमाई तो न दुनिया को छोड़ा, न दीन को छोड़ा, न आखिरत को छोड़ा, न जन्नत को छोड़ा, न जहन्नम को छोड़ा। तमाम चीजों को आपने उन दुआओं में समेट लिया है जिसको मुनाजात मकबूल में जमा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जब हम उन दुआओं को मांगेंगे, उन दुआओं को पढ़ेंगे, उन दुआओं को अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे। मुनाजात मकबूल की सबसे पहली दुआ जिससे आगाज होता है वकुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वकुल, ए पैगंबर तू कह दे, रब्बिगफिर, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह अपने पैगंबर को कह रहा है कि तुम मुझसे ये मांगो। भला दुनिया में कोई आदमी यूं कहे कि मुझसे मांगो और फिर ये कहकर कि वो भाग जाएं, ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ये कहे कि मुझसे मांगो और जब हम मांगने लगे तो अल्लाह वहां से फरार हो जाए और अल्लाह भाग जाए, ये नहीं हो सकता है। उस रब्बे करीम ने वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मैंने अभी सोचा है कि मुनाजात मकबूल की मैं तशरीह करूं, मुनाजात मकबूल की मैं शरह करूं, ताकि उम्मत के सामने ये बात आए कि अल्लाह ने जो दुआएं हमें बताई कुरान में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी वो कितनी जामे है। लेकिन दुआ मांगना है, दुआ पढ़ना नहीं है। हम आयतों को पढ़ लेते हैं, ये दुआ पढ़ना हुआ, दुआ पढ़ना नहीं है, दुआ मांगना है। और अपने दिल की गहराइयों से इखलास के साथ, हुजूर कल्बी के साथ, अपने दिल की हाजिरी के साथ अल्लाह के सामने मांगा जाए। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शानु ने अपने पैगंबर के जरिए से कहलवाया, ला यक़बलुल्लाहु तआला दुआ कल्बिन गाफिल, दुआ कल्बिन वाहिन। गाफिल कुलूब के दिलों को अल्लाह कबूल नहीं करता, वाही दिलों की दुआओं को, गाफिल दिलों की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। तो हुजूर ये दिल के साथ, दिल की हाजिरी के साथ हक़ तआला जल्ल शानुहु के सामने दुआएं की जाएं, फिर इखलास हो, दर्द हो, मांगने का सलीका हो, तवाज़ु और आजिज़ी हो, अपने जुर्मों का एतराफ़ हो, अपने आप को मुजरिम समझा जाए, हक़ तआला जल्ल शानुहु का अपना मौला, देने वाला और मोती और अपना आका और गफूर रहीम समझा जाए। इस अंदाज से दुआ की जाए और इखलास हो, गिरगिराना हो। अद्दुर्रुस समीन में शाह वलीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वाक़िया लिखा है इखलास पर। हजरत फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ईसाल सवाब करूं, अल्लाह के नबी के नाम पर ईसाल सवाब करूं। आज ये अमल हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया। हम अपने बाप के लिए ईसाल सवाब करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह के नबी के लिए कोई ईसाल सवाब नहीं करता। हालांकि ये सुन्नत है। और हमारे हजरत शेख यूनुस साहब
कुद्दस सिर्रुहु से हमने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेहतरीन किस्म के मेंढे लिए जो बड़े खूबसूरत थे, चितकबरे थे, देखने में अच्छे थे, बहुत प्यारे लगते थे। आपने उन दोनों मेंढों को कुर्बानी फरमाई। हजरत अली ने सवाल फरमाया, अल्लाह के हबीब ये कुर्बानी किसके लिए? आपने फरमाया मेरी आने वाली उम्मत की तरफ से। आपने अपनी आने वाली उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई। लेकिन अफसोस, जिस उम्मत को नबी ने कुर्बानी में भी याद किया हो, उस उम्मत के पास न दुरूद का वक्त, न सुन्नत का वक्त, न उस नबी को याद का वक्त, न लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने का हमारे पास टाइम है। इसीलिए हजरतुल इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मुहद्दिसीन किबार में से है, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि मैंने 5 लाख हदीसों को याद किया और उन 5 लाख हदीसों के अंदर से मैंने 4 रिवायतों को छाना। अगर 4 रिवायतों पर अमल हो जाए, जिंदगी अमल पर आ जाएगी। आपने फरमाया पहली रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ कोई भी काम करो, अल्लाह की रजा के लिए कोई भी काम करो। मैं अपने इन अजीज बच्चों को जो यहाँ से फारिग होकर के जा रहे हैं, जो अब दुनिया में कदम रख रहे हैं, जो अब उम्मत के पास जाने वाले हैं, मैं अपने इन अजीज बच्चों से कहूंगा, कभी ये नियत न करना कोई मुझे शेखुल तफसीर कह दे, कोई मुझे शेखुल हदीस कह दे, कोई मुझे शेखुल फिका कह दे, कोई मुझे अल्लामा कह दे, कोई मुझे कुछ और कह दे। इसकी कभी भी तमन्ना न रखना। अल्लाह की रजा के लिए काम करना। हक़ तआला जल्ल शानुहु तुम्हें जिल्लत के कांटों में भी इज्जत अता फरमाएगा। जब हमारी नीयतें सही होगी तो अल्लाह जिल्लत के कांटों में भी हक़ तआला हमें इज्जत दिया करता है। बहरहाल मैं अपने, इसीलिए हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने एक मलफूज में इरशाद फरमाया, बहुत प्यारी बात लिखी। हजरत ने फरमाया कि देखो, एक दुल्हन को उसकी सहेलियों ने जब तैयार किया, फिर सहेली उसकी तारीफ करने लगी, बहन तू तो बड़ी अच्छी मालूम हो रही है, बड़ी प्यारी मालूम हो रही है, बड़ी खूबसूरत मालूम हो रही है। तो अक्लमंद दुल्हन ने जवाब दिया, मेरी बहनों मेरी तारीफ न करो, तुम्हारी तारीफ से कुछ नहीं होगा जब तक कि मेरा शौहर मुझको पसंद न कर ले। जब तक कि मेरा शौहर मुझको पसंद न कर ले, तुम्हारी तारीफ से कुछ नहीं होगा। फरमाया इसी तरह ये दुनिया वाले तुमको कह रहे हैं आप शेखुल हदीस हो, आप शेखुल तफसीर हो, आप शेखुल फिका हो, आप अल्लामा हो, आप मुहद्दिस हो, आप मुफस्सिर हो, आप हाजी हो, आप काजी हो, आप तहज्जुद गुजार हो, आप नमाजी हो, आप मुबल्लिग हो, आप अमीर साहब हो। इन सब को जवाब दे दो, तुम्हारी तारीफ से कुछ नहीं होगा जब तक कि अल्लाह मेरी तारीफ न करे, जब तक कि मौला मेरी तारीफ न करे। हकीकत यह है कि उसकी नजर में हमें पसंद आ जाना है, दुनिया की नजर में पसंद आए या पसंद ना आए उसका कोई मसला नहीं होता। अल्लाह की नजर में हम पसंद आने चाहिए। यही वजह है कि दुर्रुस समीन में शाह वलीउल्लाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मेरे दिल में एक मर्तबा ख्याल गुजरा कि लाओ मैं अल्लाह के नबी के नाम पर ही इसाले सवाब करूं। मैंने 2 आने के चने लिए, 2 आना क्या होते, 2 आने के चने लिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर मैंने इसाले सवाब किया। रात में ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं और हाथ में चने हैं और चनों से यूं खेल रहे हैं और फरमाया वलीउल्लाह तेरे चने अल्लाह के दरबार में कबूल हो गए। ये वो इखलास है, ये वो लिल्लाहियत है, ये वो अल्लाह की रजा है। जब अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करता है हक़ तआला उसको कबूल करता है। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहली रिवायत इन्नमल आमालु बिन्नियात, अपने आमाल को सही किया जाए, अपनी नीयतों को सही किया जाए। और दूसरी रिवायत आपने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने लिए जो चीज पसंद करता है अपने भाई के लिए भी पसंद करो। अगर तुम चाहते हो मुझे इज्जत मिले, अपने भाई के लिए भी इज्जत को पसंद करो। तुम चाहते हो तुम्हें माल और दौलत मिले, अपने भाई के लिए भी माल और दौलत को पसंद करो। तुम चाहते हो तुम्हें शान मिले, अपने भाई के लिए भी शान को पसंद करो। तुम चाहते हो तुम्हें इल्म मिले, अपने भाई के लिए भी इल्म को पसंद करो। आज दुनिया बड़ी अजीब व गरीब हो गई। हमारे लिए इज्जत, दूसरों के लिए जिल्लती, हमारे लिए मालदारी, दूसरों के लिए गरीबी, हमारे लिए बड़ापन,
दूसरों के लिए हिकारत, ये अजीब हमारी सोच है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मलफूज मेरे भाइयों अपने दिलों में नक्श कर लो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अद्दु हक़्क़हु व हक़्क़ुना अलल्लाह, अद्दु हक़्क़हु व हक़्क़ुना अलल्लाह, तुम सबके हक अदा कर दो, अपना हक कोई नहीं देता है, अल्लाह से मांगो। तुम सबके हक अदा करो, तुम्हारा हक कोई नहीं देता, तुम अल्लाह से कहो। हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी सुम्मल मुहाजिर अल मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के आखिरी खानका है, अब हजरत तशरीफ ले जाने वाले हैं, आखिरी खानका है। 29 रमजान असर के बाद आपने अपने मुजाजीन, अपने खुलफा को, अपने तरबियत याफ्ताओं को कुछ नसीहत फरमाई। वो कौन लोग थे? वो आपके सामने बैठने वाले महमूद हसन गंगोही है, वो जो है अल्लामा उबैदुल्लाह बलियावी है, और उनके अलावा बड़े बड़े अकाबिर आपके सामने बैठे हैं और आप इरशाद फरमा रहे। आपने जो इरशाद फरमाया वो 2 जुमले हैं। आपने फरमाया अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारे साथ उलझ रहा है और तुम्हारे खिलाफ कोई काम कर रहा है, फरमाया इंतकामी जज्बा न लेना, इसलिए कि तुम खुश हो जाना कि वो अपना सवाब तुमको दे रहा है या तुम्हारे गुनाह अपने पास ले रहा है। हज़रत ने फरमाया अपने खुलफा को कि वो अपना सवाब तुमको दे रहा है या तुम्हारे गुनाह जो है वो ले रहा है, तो अल्लाह का फजल है कि वो इस तरह की बुराई पर हमारे साथ अच्छा मामला कर रहा है। तो अद्दु हक़्क़हु व हक़्क़ुना अलल्लाह। बहरहाल दूसरी रिवायत आपने इरशाद फरमाई तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए जो पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तीसरी रिवायत अल हलालु बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, हलाल भी वाज़ेह है, क्लियर है, हराम भी क्लियर है, इन दोनों के बीच में मुश्तबाह चीजें हैं, इश्तिबाह है जिसके अंदर शक है। दामा युरीबक इला माला युरीबक, शक वाली चीजों को छोड़ दो और जिसके अंदर शक ना हो उसे कबूल कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें तकवा अता फरमाएंगे, वरा अता फरमाएंगे। और चौथी रिवायत फरमाई मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम इंसान की खूबी यह है कि इंसान लायानी बातों को छोड़ दे, बेकार बातों को छोड़ दे, अबस बातों को छोड़ दे, जिससे न दीन का फायदा, जिससे न दुनिया का फायदा, ऐसे कामों को छोड़ दे। तो बहरहाल मेरे भाई ये कह रहा था कि ये 5 लाख अहादीस के अंदर से मुंतखब शुदा ये 4 रिवायतें हैं। फरमाया जो इस पर अमल करेगा सारा दीन उसको मिल जाएगा। तो अल्लाह से मांगने का हमारे पास सलीका हो, हम इखलास के साथ मांगने वाले बने। मैंने कभी एक नुक्ता बयान किया था आपको, फिर जहन में आया कि अर्ज कर दूं कि देखिए दुनिया में मांगने के जो तरीके हैं, कोई रुमाल बिछाकर मांगता है, कोई चादर बिछाकर मांगता है, कोई बर्तन लेकर मांगता है, कोई थैला लेकर के मांग रहा है, कोई किस तरह पर मांग रहा है। लेकिन अजीबो गरीब बात, हक ताला ने जब अपने बंदों को मांगने को फरमाया तो न रुमाल, न तवाल, न चादर, न बर्तन, न कशकोल, कोई चीज नहीं, बल्कि यूं फरमाया मेरे बंदे हाथ उठा लेना और मुझसे मांग लेना, मैं तुझे अता करूंगा। ए अल्लाह, इसमें हिकमत क्या होगी कि तूने किसी चीज का मोहताज नहीं बनाया और फरमाया हाथ उठा लेना। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह ने इशारा फरमाया इस बात की तरफ कि ओ मेरे बंदे, रात में 2 बजे तेरे दर्द में, तेरे गम में, तेरे टेंशन में, तेरी मुसीबत में, तेरी परेशानी में, तेरी बीमारी में, रात 2 बजे मैं तुझको याद आ गया, तू कहां चादर तलाश करेगा, तू रुमाल कहां तलाश करेगा, तू बर्तन कहां तलाश करेगा। सोते सोते ही अपने हाथों को उठा लेना, मैं तेरी जरूरतों को पूरी कर दूंगा। यह ताला की तरफ से इनायत है, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अता है, यह बहुत बड़ी बख्शिश है मेरे भाइयों जो ताला जल्ल शानहू ने अपने बंदों को अता फरमाई है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमें चाहिए कि अपने दिलों के अंदर इखलास, लिल्लाहियत, रोने वाला दिल अपना बनाओ। अगर रोने वाला दिल होगा तो अल्लाह ताला मसाइब में हमारी मदद फरमाएंगे। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है, इन्नल्लाह तबारक व तआला यरफउ बिहा अक़वाम व यज़उ बिहा आखरीन,
हक़ तआला जल्ल शानु इस कुरान के ज़रिए से बाज़ों को इज़्ज़त अता फरमाते हैं और बाज़ों को ज़लील करते हैं। जो इस कुरान की इताअत करता है अल्लाह उसको उठाता है, और जो इस कुरान की तज़लील करता है अल्लाह उसको गिराता है, मिटाता है, ज़लील करता है, रुसवा करता है। इन्नल्लाह तबारक व तआला यरफ़अु बिहा अक़वाम। हज़रात उलमा ने, बल्कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने, जो हम सब के बड़े हैं, एक अजीब व गरीब नुक्ता यहाँ लिखा है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि सबसे पहला इंसान और सबसे पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनका पुतला तैयार हुआ तो उस पुतले के तैयार होने के बाद जब रूह डाली गई तो रूह डालने के बाद आपको जो इल्म दिया गया वो इल्म था इल्म अस्मा, अस्मा का इल्म। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माए हाउला। हज़रत आदम को इल्म दिया, फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया मलाइका का भी, आदम का भी, और ये कहा कि बताओ ये चीज़ों के नाम। फरिश्ते नहीं बता सके, आदम ने बता दिया। उसके बाद अल्लाह ताला का इरशाद हुआ उस्जुदू लि आदम, सारे लोग आदम को सजदा करो। ये मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी तो जलील होने वाली, रजील, पांव के अंदर रौंदी जाने वाली, ऊपर डालो तो भी नीचे आ जाती है, इतनी जलील मिट्टी, और उनके सामने मलाइका जो नूर से बने हुए, मलाइका तो नूर से बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया जो नूरी मखलूक है उनसे कहा इस मिट्टी को सजदा करो, इस आदम को सजदा करो। क्यों आदम को सजदा करो? आखिर वो जौहर क्या था, वो हकीकत क्या थी जो आदम के अंदर रखी हुई थी? फरमाया वो इल्म का जौहर था, वो इल्म की खुसूसियत थी जो आदम में अल्लाह ताला ने रखी हुई थी। अब सुनो, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं मालूम ये होता है कि जिसके पास इल्म हो, जिसके पास इल्म हो वो लायक है इस बात का कि उसको सजदा किया जाए, अहले इल्म को सजदा किया जाए, उलमा को सजदा किया जाए। अगरचे सजदा करने की इजाजत हमारी शरीयत में नहीं है, हमें यह नहीं कहा गया कि हम किसी गैरुल्लाह को सजदा करेंगे, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करने से हमें मना किया गया। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री वसना, मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना, सजदागाह न बनाना, सजदे न करना, तो आपने मना फरमाया। लेकिन हकीकत यह है कि अहले इल्म और उलमा इस काबिल है कि उनको सजदा किया जाए। अगर सजदे की इजाजत होती तो फिर उलमा को सजदा करने की इजाजत होती। इस हैसियत से भी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जौहर इल्म की बुनियाद पर उनको सजदा किया गया, और इस बुनियाद पर भी कि उलमा वारिस अंबिया है, हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिस है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर उस जमाने में इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आया। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो हाजिर हुआ मुसाफे के लिए, मुलाकात के लिए, और उस जमाने में ये डिग्री डॉक्टर की बहुत बड़ी मानी जाती थी। वो आया, उसके जाम में, उसके दिमाग में कुछ गुरूर सा घूम रहा था, कुछ तकब्बुर सा घूम रहा था, कुछ बुलंदी घूम रही थी। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकाशफती आंखों के जरिए से, अपने इल्हामी दिल के जरिए से परख लिया और ये देखा कि इसके दिल के अंदर कुछ अपने इल्म की बुनियाद पर गुरूर तपक रहा है, इसके दिल के अंदर कुछ तकब्बुर मालूम हो रहा है, और वो अपने इल्म की बुनियाद पर इस चटाई पर बैठने वालों को गोया के मामूली समझ रहा है। तो हजरत ने बात करते करते फरमाया बेटा तुम जो इल्म को लेकर आए यकीनन इसकी बहुत जरूरत है, इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसानी जिस्मों के इलाज की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाएं बताई, शहद इस्तेमाल करो, कलूंजी इस्तेमाल करो, फला चीज इस्तेमाल करो, तो इस इल्म की बहुत जरूरत है। लेकिन बेटा एक बात ये याद रखो कि ये जो उलूम यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं और इनको जो इल्म दिया जा रहा है ये वो इल्म है कि जिस इल्म के लिए अल्लाह के नबी के कल्बे मुबारक को 4 मरतबा चीर कर और चाक करके आपके कल्बे मुबारक को धोया गया था। जबकि आप पाकीज़ा थे, आप मुकद्दस थे, आपका कल्ब पाक और पवित्र था, उसके बावजूद 4 मरतबा आपके कल्ब को निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया। तो बेटा आप अंदाज लगाओ कि मुकद्दस शख्सियत के दिल को 4 मरतबा जमजम से धोया गया हो, इस इल्म के लिए वो इल्म कितना ऊंचा होगा।
फरमाया ये वो इल्म है जो इन मदरसों में दिया जाता है, ये वो इल्म है जो इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये वो इल्म है जो इन बच्चों को दिया जा रहा है। यही वजह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बहुत अजीब व गरीब बातें थी। फुसहा और बुलगा का जमाना था, फसी और बलीग बोलते थे, उनकी जबान बड़ी अजीब व गरीब थी। वो माँ के पेट से फसी और बलीग बोलने वाले पैदा होते थे अरबी जबान के अंदर। आप तारीख पल्लो पूरी की पूरी, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हुजूर की आमद से पहले मक्के में कोई मदरसा था, मदीने में कोई मदरसा था, कोई स्कूल थी, कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई कॉलेज थी, कोई नर्सरी थी जिसके अंदर बच्चों को तालीम दी जाती हो, कोई मदरसा स्कूल नहीं था। लेकिन वो माँ के पेट से फसी और बलीग अरबी बोलने वाले पैदा होते थे और वो अशार पढ़ते थे कि एक एक आदमी को 1,000 अशार याद होते थे और वो काबतुल्लाह के दरवाजे पर लटकाते थे और चैलेंज करते थे कि हमारे अशार के मुकाबले में और अशार ले आओ। और कई दिन गुजर जाते थे कि उनके चैलेंज का जवाब नहीं मिलता था। ऐसे फसीह व बलीग बोलने वाले और ऐसे फसीह व बलीग जबान के रखने वाले, जाहिर सी बात है कि वो भी एक तहजीब थी, वो भी एक कल्चर था, वो भी एक जबान थी। हत्ता कि उनको अपनी जबान पर इतना नाज था कि आप अरब के अलावा जितने थे उन सबको अजमी कहते थे। अजमी का माना गूंगा होना, यानी हम ही बोलने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया गूंगी है, लोगों को गूंगा कहा करते थे। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के हबीब ने अपने से पहले के दौर को दौरे जाहिलियत से ताबीर फरमाया। उस दौर को जो फसाहत व बलागत का दौर था उसको दौरे जाहिलियत से ताबीर फरमाया और अपने बाद के दौर को दौरे इल्म से ताबीर फरमाया। मालूम होता है इंसान दुनिया के कितने उलूम हासिल कर ले वो जहालत का मसला है, और इंसान नबी का इल्म हासिल कर ले वो इल्म का मसला है। ये है असल इल्म का मसला, यही वो इल्म है, वही कुरान है, ये वो हदीस है जिसके जरिए से हक तआला जल्ल शानहू इंसान को, कौमों को उठाते हैं और इस कुरान की और इस हदीस मुबारक की। हत्ता के इल्म एक ऐसी चीज है जिससे इंसान कभी बेनियाज नहीं हो सकता, कभी मुस्तगनी नहीं हो सकता। आप गौर फरमाएं कुरान करीम के अंदर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर है, बहुत शानदार बयान दे रहे हैं। और किसी ने पूछ लिया हजरत आपसे भी ज्यादा किसी के पास इल्म होगा, हल आलम मिन्क, आपसे ज्यादा इल्म होगा? आपने फरमाया नहीं, मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं। आपका जवाब 100% सही था, इसलिए कि आप नबी थे, नबी भी उलुल अज़्म थे, उलुल अज़्म पैगंबर थे। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नबी, इनसे बढ़कर उम्मत के पास कहां ये इल्म हो सकता है। लेकिन फिर भी अल्लाह को ये जवाब पसंद ना आया। गोया यूं कहना चाहिए था सबसे ज्यादा आलम अल्लाह है, अल्लाह ताला के बाद में हूं। अल्लाह को ये जवाब पसंद ना आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला एक है और वो खजीर है, जाओ उनके पास इल्म हासिल करने के लिए। फरमाया अल्लाह कहां वो मिलेंगे हमको? फरमाया जहां पर मजमाल बहरैन है, जहां दो समंदर जमा होते हैं। फरमाया समंदर जमा होने की जगह तो बहुत बड़ी होगी, आखिर वो कौन सी जगह? फरमाया एक मछली ले लो और उसको भी तल के ले लो। वो मछली अगर रह गई खाने के काम आएगी और अगर जिंदा हो गई तो अलामत के काम आ जाएगी, निशानी बन जाएगी। जहां वो चली जाएगी वहीं पर वो मौजूद होंगे खजीर जिससे तुमको मिलना है। चले अपने खादिम यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक जगह कयाम फरमाया, उसके बाद फिर आगे चले, रास्ते में भूख लगी, फरमाया कि लाओ वो मछली हम खाना खा ले। फरमाया हजरत मैं तो भूल गया आपको कहना, वो जहां हम आराम कर रहे थे वहीं पर वो जिंदा होकर चली गई। हमारे हकीमुल उम्मत हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह अहले इल्म के लिए एक बात नकल करता हूँ। हजरत थानवी फरमाते हैं कि इतना बड़ा मसला पेश आया और यूसुफ भूल गए, इतना बड़ा मसला और यूसुफ भूल कैसे गए? हजरत थानवी जवाब देते हैं हकीकत यह है कि ऐसे मौजिज़ात तो यूसुफ रोजाना देखते रहते थे, इसलिए हमारे लिए बड़ा अजूबा था, उनके लिए कोई अजूबा नहीं था। इसकी बुनियाद पर उनको याद न रहा।
फरमाया वो तो वहीं चली गई, वापस आए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, जिसको कुरान ने नकल किया, लक़द लकीना मिन सफरिना हादा नसबा। हजरत यूसा को कह रहे इस सफर में तो हमको बड़ी थकावत हुई। उलमा को और तालिब इल्मों को इशारा किया गया इस बात की तरफ कि थकावत के बगैर इल्म नहीं मिलता है, मुजाहदों के बगैर इल्म नहीं मिलता है। यहाँ उलमा ने ये लिखा है कि मूसा लंबा वाक़या है जिसको कुरान ने नकल किया कि खजीर के पास पहुंचे, चादर ओढ़ कर सोए हुए थे। सलाम अलैकुम, फरमाया कौन इस जमीन में सलाम करने वाला? फरमाया मूसा। फरमाया मूसा मिन बनी इसराइल? फरमाया हाँ। फरमाया कि अच्छा कैसे आए? फरमाया आपके पास जो इल्म है वो मुझे हासिल करना है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपने फरमाया तुम मेरी शर्त पर नहीं उतर सकते हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तुम जो है मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तुमसे बकौल हमारे हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तुम हमारे मदरसे के कवाइद की पाबंदी नहीं कर सकते हो। बहुत प्यारा तर्जुमा फरमाया, तुम हमारे मदरसे के कवाइद की पाबंदी नहीं कर सकते हो। हजरत मूसा कह रहे हैं कि नहीं, मैं पूरा सब्र करूंगा और पूरी पाबंदी करूंगा। लेकिन बहरहाल तीन ही मसले ऐसे पेश आए कि जिस पर मूसा को इश्काल होता रहा। नतीजा ये हुआ कि हादा फिराक़ु बैनी व बैने, आपने हजरत खजीर ने उनको रवाना किया। लेकिन इस वाक़ये के तहत उलमा ने लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उलुल अज़्म पैगंबर होने के बावजूद इल्म को हासिल करने के लिए भेजा। मालूम होता है नबुव्वत मिलने के बाद भी इंसान इल्म का मोहताज रहता है, नबुव्वत के बाद भी इंसान इल्म का मोहताज रहता है। हमारी जहालत हमारे इल्म से ज्यादा है, हमारी जहालत हमारे इल्म से ज्यादा है। इसलिए इन मदारिस को कायम किया गया, इन मकातिब को कायम किया गया, इन दीनी किलों को कायम किया गया, ताकि इन दिली किलों के जरिए से, इन मदारिस के जरिए से, इन मकातिब के जरिए से हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, हमारे अजीजों को, हमारे लालों को, हमारे लख्ते जिगर को, हमारे नूर नजर को उलूम दीनिया से मुज़य्यन किया जाए और उलूम शरइया से मुज़य्यन किया जाए और उलूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन किया जाए। यही हमारे मदारिस की हकीकत है और इन्हीं बुनियादों पर हमारे मदारिस को कायम किया गया है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाई जाती है, मुल्क की वफादारी सिखाई जाती है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी सिखाई जाती है, कुरानी तालीमात सिखाई जाती है। अभी जिस बच्चे ने शान रिसालत में जो गुफ्तगू की थी, वाकईतन जी चाहता था कि हम उसको अपने सीने से लगा ले। उसने बेहतरीन अंदाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी सुन्नत को और आपकी जिंदगी को, आपके कमालात को बहुत मुख्तसर अंदाज में लेकिन जामे तौर पर गोया के समंदर को कूजे में भर करके हमारे और आपके सामने पेश किया। लेकिन हकीकत यह है कि हमने उसको सुना अनसुना कर दिया, हमने किसी ने वाह वाह कह दिया और किसी ने और जुमला कह दिया, बस इसी पर मसला खत्म हो गया। नहीं मेरे भाइयों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुक़द्दसा वो शख्सियत है कि जो वो इशारा कर रहा था कि जन्नत भी उसके हाथ में दी गई, चाबी उसी के हाथ में होगी, जब तक वो नहीं जाएगा कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता। कयामत और हश्र का मैदान उसी के हाथ में होगा। सारे लोग नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, वहां अगर कोई सिफारिश करेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। आप फरमाते हैं मेरा मिंबर कयामत के दिन हौज़े कौसर पर लाया जाएगा, मैं अपने मिंबर के ऊपर बैठूंगा और मेरे प्यासे उम्मतियों को मैं पानी पिलाऊंगा और मेरी उम्मत को मैं पानी पिलाकर सैराब करूंगा, जन्नत में जाने तक कभी उनको प्यास नहीं लगेगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन मैं मेरी उम्मत को बचाने के लिए कभी अल्लाह के सामने सिफारिश के लिए दौड़ रहा हूँगा और कभी जहाँ आमाल उम्मत के तोले जा रहे हैं वहाँ मैं खड़ा खड़ा दुआ कर रहा हूँगा, ए अल्लाह इसके नेकियों के पलरे को झुका दे, इसके नेकियों के पलरे को झुका दे, और अगर मैं वहाँ न मिलूँ तो फिर आ जाना जहाँ पर पुल सिरात रखा होगा, मैं वहाँ खड़ा हूँगा और दुआ कर रहा हूँगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह मेरा उम्मती
जा रहा है जहन्नम में गिरने न पाए, इसको सही सलामत गुजार दे। वो ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक माँ तड़पती है, जो एक बाप तड़पता है, उससे ज्यादा हमारा नबी दुनिया में भी तड़प के गया और क़यामत के दिन हशर के मैदान में भी अपनी उम्मत के लिए तड़पेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप एक रात बहुत रो रहे थे, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको सलाम कहा और आपके रोने की वजह पूछी। आपने फरमाया मेरी उम्मत के जहन्नम में जाने का जो तस्किरा आया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जिब्रील ने जाकर इत्तला दी, सही तरीन रिवायत, अल्लाह ने पैगाम भेजा, मेरे महबूब को कह दो इन्ना सनुर्ज़ीक़ फ़ी उम्मतिका, हम आपको इतना देंगे कि अब आपको राजी कर देंगे। वलसौफ़ युअतीक रब्बुका फ़तरदा। तो अल्लाह का नबी भी क्या कह रहा है, वो लादला, वो प्यारा नबी अपने अल्लाह को कह रहा है मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरे एक एक मोमिन उम्मती को जन्नत में न ले जाऊं, जब तक कि मैं इनको जन्नत में न ले जाऊं वहां तक मैं भी राजी नहीं होऊंगा। मेरे भाइयों, वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उलमा ने लिखा है कि मेराज का सफर कोई नमाज के लिए नहीं हुआ था। मेराज का सफर तो असल हुआ था कि इस नबी को कयामत तक चलना है और इस नबी की उम्मत में बड़े बड़े साइंसदान आएंगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले आएंगे जो दावा करेंगे कि हम चांद पर जा रहे हैं, वो दावा करेंगे हम फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो दावा करेंगे हम रॉकेट ऊपर चला रहे हैं। तो ये बड़े बड़े साइंसदान और टेक्नोलॉजी वाले आएंगे। हक़ तआला जल्ल शानु ने फरमाया मेरे पैगंबर, वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी तेरे कदमों में मैं डाल रहा हूं। पहली टेक्नोलॉजी तो ये डाली कि बाईपास का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर इस पर फख्र कर रहा है कि मैंने बाईपास का ऑपरेशन किया और इसके हार्ट और दिल को निकाल कर किया। अरे 1400 साल पहले जिब्रील अमीन ने मेरे आका के कल्बे मुबारक को 4 मरतबा निकाल करके धोया था। बाईपास का ऑपरेशन तो वहीं से साबित हो गया है। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी साइंस ज़ात अक़दस के अंदर अल्लाह ताला ने पहले ही से समा दी। इसीलिए ये आइंदा चल करके दावा करेंगे हम चांद पर जा रहे हैं, हम रॉकेट भेज रहे हैं, हम फ्लाइट चला रहे हैं। आओ मेरे पैगंबर, ये तो एक हद तक आ रहे हैं, मैं उससे भी ऊपर तुम्हें ले जा रहा हूं। आसमान पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, बल्कि 7वें से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, हत्ता कि मैं अपने करीब वकाना काब कौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने करीब में तुम्हें बुला रहा हूं। तो असल सफर तो आपका इस बुनियाद पर हुआ था ताकि साइंस आपके सामने मान पड़ जाए, टेक्नोलॉजी आपके सामने मान पड़ जाए कि वो आका इस तरह पर तशरीफ ले गए। लेकिन आप जब वहां पहुंचे अल्लाह के दरबार में तो आपको अपनी उम्मत याद आ गई कि अल्लाह तूने मुझको जो मकाम दिया, इतना कुर्बत का, इतना करीब का, इतना तकर्रुब का, इतना तेरे पास आने का, ए अल्लाह मेरी उम्मत को यह मकाम कब नसीब होगा, मेरी उम्मत इस मकाम पर कब आएगी। अल्लाह के नबी को वहां भी अपनी उम्मत याद आ गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया दिल की बात को जानकर मेरे महबूब मैं तुझको एक अमल देता हूं, वो नमाज का अमल है। जब तेरी उम्मत इस नमाज को पढ़ेगी और सजदे में जाएगी तो सजदे में तेरी उम्मत मुझसे इतनी करीब हो जाएगी जितना कि तू अभी मेरे करीब है, जितना तू अभी मेरे करीब है। इसीलिए फरमाया इन्नल अब्द यतक़र्रबु इलल्लाहि तआला बिस्सुजूद, बंदा जो है वो सजदे की हालत में अल्लाह से करीब हो जाता है। बहरहाल इसलिए हक़ तआला जल्ल शानु जब पैगंबर ने अपने दिल में अपनी उम्मत से मुताल्लिक के ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर नमाज को अता फरमाया। तो मेरे भाइयों, हकीकत ये है जो इस कुरान को मानेगा अल्लाह उसको उठाएगा, जो इस कुरान की नहीं मानेगा अल्लाह उसको जलील करेगा। हमें चाहिए कि हम कुरान करीम की इताअत करने वाले बने और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करने वाले बने। आज दुनिया के सारे हालात, सारे मसाइब, सारी परेशानियां और ये मुख्तलिफ किस्म के हालात जो हमारे ऊपर आ रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि उम्मत ने कुरान और हदीस को छोड़ा है, उम्मत ने कुरान और हदीस को छोड़ा है। अल्लाह करे कि ये उम्मत कुरान और हदीस के ऊपर आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो हालात और वो जो है वो खुशियाँ और वो कामयाबियाँ दोबारा हमें मिल सकती है जो ताला जल्ल शानुहु ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
صحابہ کرام کو اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ حق تعالیٰ شرور اور فتن سے مدرسے کے ناظم حضرت مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حبیب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یعنی علماء کے محبوب بھی ہے اور لوگوں سے محبت کرنے والے بھی ہیں، تو حبیب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پوری حفاظت فرمائے، اور جتنا عملہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اساتذہ کا یا اس کے علاوہ خدام مدرسہ کا، حق تعالیٰ جل شانہ تمام ہی کی حفاظت فرمائے شرور فتن بلا مصائب سے۔ اور جو یہاں متعلمین ہیں، جو طلبہ ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیر اور دور کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ حق تعالیٰ ان سے خوب دین کی خدمت لے لے، اور جو حفاظ کرام ہیں حق تعالیٰ جل شانہ ان کے حافظ ہونے کو مبارک فرمائے، اور ان کے سینے میں اس عظیم المرتبت کتاب کو تا قیام قیامت محفوظ فرما دے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو چڑھتا جا اور پڑھتا جا جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری آخری منزل ہوگی، وہاں جنت کا تجھے مقام ملے گا۔ آج یہ جامعہ ہمارا آپ کے سامنے 25 حفاظ کرام کو پیش کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جمع غفیر علماء کی جماعت کو پیش کر رہا ہے، قراء کو پیش کر رہا ہے، اور ہر سال اسی طرح یہ جامعہ جو ہے علماء کو، حفاظ کو، قراء کو، مفتیان کو پیش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، نظر حسد سے حفاظت فرمائے، نظر عداوت سے حفاظت فرمائے۔ آپ کی اور ہماری آمد صرف اور صرف اسی لیے ہوئی ہے، جامعہ نے آپ کو اسی لیے بلایا، مولانا نے آپ کو اسی لیے دعوت دی، تاکہ آپ کی آمد اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے یہ طلبہ کے حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کا دل ذرا بڑا ہو جائے، ان کے دل خوشیوں سے مچل جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی ڈگری والے کے لیے بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، لیکن دین کی ڈگری والوں کے لیے اتنی مجلسیں قائم نہیں ہوتی۔ اہل مدرسہ نے اور نظماء نے اور ناظمین نے اور مولانا نے ہر سال یہ طے کیا کہ آپ کو بلا کر کے ان کے دلوں کو خوشیاں پہنچائی جائیں، تاکہ ان کا دل باغ باغ ہو، اور دوسرے لوگوں کو اس بات کا شوق پیدا ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام شرور فتن سے ان کے ہماری حفاظت فرمائے، حضرت قاری صاحب کی آمد کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ اللہ برائیوں سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں حدیث کے ذیل میں مجھے یاد آ گئی، میں نے عرض کر دی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رات کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں، اندھیروں میں اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ظاہر ہمارا اچھا ہے، باطن ہمارا گندا ہے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو حسد سے پاک فرما دے، بغض سے پاک فرما دے، عداوتوں سے پاک فرما دے، نفرتوں سے پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے اوپر جو بادل مندلا رہے ہیں، اے اللہ جو حالات کے بادل ہیں، مولا ہم آپ سے التجا اور درخواست کر رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رو رو کر کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہ ہمیں منصف مزاج ضمیر عطا فرما، اللہ ہمیں منصف مزاج ضمیر عطا فرما، جو ہماری بھی رعایت کرے، جو دوسروں کی بھی رعایت کرے، جو تمام مذاہب کی رعایت کرے، جو تمام دین کی رعایت کرے، جو تمام قوموں کی رعایت کرے۔ اے اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما، ہمارے ملک کی توتنے سے حفاظت
فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی فساد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی گندگیوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے ان مدرسوں کو قبول فرما، اے اللہ مدرسوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اے اللہ مخلص دینے والے عطا فرما، الہ العالمین اے اللہ ان مدارس، مکاتب، مراکز اور خانقاہوں کی پوری حفاظت فرما، الہ العالمین اس کے نظماء کی حفاظت فرما، مولانا کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، الہ العالمین یہاں کے معلمین و متعلمین اور خدام کی حفاظت فرما، ہم سب کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بچے عالم بن کر کے جا رہے ہیں ان کو قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما، ان کے سینوں کو اے اللہ علوم دینیہ کے لیے کھول دے، الہ العالمین دین کی اشاعت کی بھی انہیں توفیق عطا فرما اور دین کی حفاظت کی بھی انہیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو حافظ ہوئے ان کے سینوں میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرما، ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ دار اقارب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجات کو پورے فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو اے اللہ نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی الہ العالمین مغفرت فرما دے، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ اے اللہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ